Okay. So hypothesis means when we want to validate or to testify the relationship between the variable, so we form a hypothesis. And I have shown you several times how the hypothesis is like. But hypothesis cannot be only one type. These hypotheses can be of number of types depending upon different classification basis, right? The first one is on the basis of structure. Now, on the basis of structure means a hypothesis can be very simple or complex at the same time. For example, if I say that marks of the students, the higher the number of hours a student will study, the more he will get the marks, right? This is a example of simple hypothesis. If what you will say, the lesser the what you will say, the higher the job performance, the greater would be the reward, right? The lower the tension, the higher would be the performance. So these are some example of simple hypothesis. That means there is one independent variable and one is dependent variable. We will talk about this in our later part of the lecture. Complex hypothesis can be when we talk about that height of the student or height of a height of children is affected by the age, hereditary, nutrition of the children. So this is an example of complex hypothesis where I am telling that that it is getting affected by several variables and I am putting all the variables in one go, right? Next is on the basis of purpose. Purpose means descriptive or causal. See, I can make a hypothesis that my hypothesis would be that in India, 50% of the males smoke. So this is an example of descriptive hypothesis. Causal hypothesis, more smoking leads to health hazards. This is a causal, मतलब smoking करने से health hazards होते हैं. तो ये एक example हुआ आपके लिए causal का. Descriptive में you are not making any kind of causes, you are just telling that this is the picture and then you go to the survey and you find out whether the 50% men smoke or not, right? Then on the basis of association, now relational or directional. Relation means there is a relationship between smoking and health hazards. So you're not talking about whether it is a positive effect or a negative effect. You are just saying that there is a relation between smoking habit and health of a person. Directional means there is a negative effect of smoking habit or smoking habit negatively impacts health. So it is a negative. You are also telling that negatively it impacts. Maybe if a student study higher, if a person has higher degree, his earning will be more. So that means यहाँ पर आप बता रहे पॉजिटिव डायरेक्शन कि ज्यादा बड़ी डिग्री होगी, मतलब 10th है तो कंपैरेटिवली कम कमाएगा, ग्रेजुएट है तो कंपैरेटिवली ज्यादा कमाएगा, और कोई प्रोफेशनल डिग्री है उसके बाद तो कंपैरेटिवली उसकी इनकम और ज्यादा होगी. सो यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अप अ हाइपोथेसिस व्हिच इज डायरेक्शनल इन नेचर. दैट मींस रिलेशन के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहा है. सो डायरेक्शनल इंक्लूड्स रिलेशनल, बट रिलेशनल इज नॉट इंक्लूड इन डायरेक्शनल. रिलेशनशिप सिर्फ हमें दो वेरिएबल एसोसिएटेड है सिर्फ वो बताते हैं. तो जितने भी हमारे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम कई बार ये कह देते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ रिलेशन बताते हैं, एसोसिएशन बताते हैं, डायरेक्शन नहीं बता पाते, कॉजैलिटी नहीं एस्टेब्लिश कर पाते. इसीलिए हम पैरामेट्रिक टेस्ट को ज्यादा फेवर करते हैं, ज्यादा वेटेज देते हैं, और वो क्या होते हैं वी विल कवर इट इन आवर थर्ड और फोर्थ यूनिट, राइट? देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग. स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, नल और ऑल्टरनेटिव. नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से, ऑल्टरनेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से. जब मैंने पीएचडी की थी, राइट, उस वक्त देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ राइटिंग H0 आल्सो, बट नाउअडेज पीपल वर्क ऑन ओनली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नाउ व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट? नल मींस एज नेम इज इंडिकेटिंग देयर इज नो फिनोमेना. सो जब हम रिसर्च शुरू करते हैं तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब किसी एक चीज की वजह से दूसरी चीज इंपैक्ट नहीं होती है. फॉर एग्जांपल स्मोकिंग कॉजेज नो हेल्थ हैजार्ड्स,
या देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग हैबिट एंड हेल्थ ऑफ द पर्सन। ये हो गई आपकी नल, मतलब हम शुरू से पहले ये मान के चलते हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर हम एक सैंपल उठाते हैं, फिर हम चेक करते हैं, और फिर नल को हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर वैल्यूज। ये सब हम सीखेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कि हम कैसे करते हैं, होता क्या है, कैसे वेरिएबल्स होते हैं, वी विल डू इट। अभी हम थ्योरेटिकली इस चीज को कवर कर रहे हैं। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मींस वी आर सेइंग कि हेल्थ स्मोकिंग इंपैक्ट्स हेल्थ। नाउ जब मैं बोल रही हूँ आपको स्मोकिंग इंपैक्ट्स हेल्थ, यहां पर मैं सिर्फ आपको रिलेशनशिप बता रही हूँ, अभी मैंने डायरेक्शनल नहीं बनाई है कि स्मोकिंग नेगेटिवली इंपैक्ट हेल्थ। अगर मैंने ये बोल दिया तो मैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात कर रही हूँ, बट ऑल्टरनेटिव इज दैट हम एक रिलेशनशिप पहले ही मान रहे हैं कि हाँ दोनों के बीच में है, पर हम अपने सैंपल पे चेक करना चाहते हैं। किसी एक्स पर्सन ने किसी और कंटेक्स्ट में इसको चेक किया, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो हमारे सैंपल पे भी हम चेक करना चाहते हैं। तो नाउ इट इज जब हम अपनी हाइपोथेसिस लिखते हैं तो पहले हम एक इस्टेब्लिश करते हैं कि हम इस फिनोमिना पे क्यों आए हैं, हम इस रिलेशनशिप को क्यों बोल रहे हैं, और उसके बेसिस पर हम फिर उस चीज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। right? So nowadays we work on alternative hypothesis. I'll show you in a paper. अभी आपको null तो नहीं दिखा पाऊंगी because now people don't write about it. Maybe in books you can get that, but in papers जब हम आपने देखा होगा H1, H2, H3, H5 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो जितने वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है उतनी हाइपोथेसिस होती है, और पहली हाइपोथेसिस को हम H1 बोल देते हैं, फिर H2 बोल देते हैं, फिर H3 बोल देते हैं, बट एवरी टाइम नल हाइपोथेसिस H0। H0 मतलब we are talking about null, तो 0 is reserved for null only। अब कुछ वर्ड्स मैंने बार बार यूज किए हैं, वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, और अभी हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली मींस वेरिएबल एंड व्हाट इज एट्रीब्यूट। ओके, वेरिएबल एज नेम इज इंडिकेटिंग समथिंग इज वेरिंग हियर, फॉर एग्जांपल मार्क्स, राइट? सो वेरिएबल सबके लिए अलग है। मार्क्स, अगर मैं आपकी क्लास की बात करूं और मैं कहती हूँ मार्क्स ऑफ एक्स, मार्क्स ऑफ वाई, मार्क्स ऑफ जेड, तो एक वेरिएबल हो गया मार्क्स, और जिसमें हर इंडिविजुअल के मार्क्स आ रहे हैं, जो बदल बदल के वैल्यू ले वो वेरिएबल। जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जैसे हम करते थे x + 2, तो x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे, y = x + 2 कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 एक कांस्टेंट हुआ। x की कोई भी वैल्यू आए, लेकिन 2 की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज 2 इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन, बट x इज समथिंग, राइट, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की बात करूं और मैं एक रिलेशनशिप बनाऊं कि मेरे बच्चों का जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है उसमें मेरा एज अ टीचर एफर्ट प्लस आपका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू योर परफॉर्मेंस। नाउ फॉर एवरीवन whosoever is in my class, टीचर्स एफर्ट इज सेम। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बच्चे को एडिशनल पढ़ा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, या कुछ एडिशनल मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो मेरा जो परफॉर्मेंस है या एज ए टीचर, या मेरा जो कंट्रीब्यूशन है एज ए टीचर, दैट वुड बी द कांस्टेंट एंड योर इंडिविजुअल एफर्ट्स वुड बी द वेरिएबल, राइट? तो ये रिग्रेशन का एक पार्ट होता है, ये हम लेटर ऑन करेंगे कि क्या इक्वेशन की बात करूं। आपको बहुत सारी बातें थोड़ी समझ नहीं आ रही होंगी, दैट आई अंडरस्टैंड, बट वेरिएबल का मतलब आप बड़ा सिंपल से समझिए। जैसे जेंडर एक वेरिएबल है, सबके लिए एक तो नहीं होता ना सबका, तो वो क्या हुआ, मेल फीमेल एंड अब तो थर्ड जेंडर भी है। लेकिन ह्यूमन बीइंग वो वेरिएबल नहीं है, वी आइदर वी आर मेल और फीमेल, बट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग इज अ कांस्टेंट, तो वहां पर वो वेरिएबल नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गर्ल्स कॉलेज में कुछ या गर्ल्स के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं, तो गर्ल आपका वेरिएबल नहीं हुआ, वो आपका वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो पैरामीटर है ही नहीं डिफरेंशिएटिंग का। वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो, कोई भी चीज वेरिएबल तभी बनती है जब उसकी वैल्यू बदलती रहे, राइट? और दूसरी बात, उसमें कैटेगरीज हो, मतलब कुछ हो, जेंडर हो, एज हो, इनकम हो, जो वेरी हो और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हो, अलग अलग रहे, तो वो आपका बेसिकली वेरिएबल हो जाता है। मेजरेबल होना चाहिए पहली चीज, और वैल्यू बदलती रहनी चाहिए। ये दो चीजें वेरिएबल के लिए बेसिक उसकी क्वालिफिकेशन होती है, किसी भी फिनोमिना को अगर हम वेरिएबल बोले, राइट? एट्रीब्यूट्स क्या होता है? वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू गई वो एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी क्लास में सर्वे करती हूँ, जेंडर एक वेरिएबल हो गया कि, तो उसके एट्रीब्यूट क्या है? किसी के अंदर फीमेल वाले एट्रीब्यूट है, मतलब कोई फीमेल है तो वो मेरी फीमेल की कैटेगरी में आएंगी,
जो लड़के हैं वो मेल की कैटेगरी में आएंगे, राइट। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करूं तो अलग अलग स्लैब्स होती है इनकम की, तो वो आपका एट्रीब्यूट हो गया। जैसे हम कहते हैं ना एट्रीब्यूट मतलब एडजेक्टिव की तरह, व्हाट इज योर क्वालिटी, उसके बेसिस पर मैं आपको कैटेगराइज कर देती हूँ और वेरिएबल बना देती हूँ। तो जेंडर इज अ वेरिएबल, मेल फीमेल इज एन एट्रीब्यूट। तो डेफिनेशन वाइज देखें, ए वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन टेक डिफरिंग वैल्यूज, राइट। जैसे जेंडर है वेरिएबल, उसमें अगर सारी फीमेल्स हैं, राइट, तो देन इट इज नॉट अ वेरिएबल। वेरिएबल वो तभी बनेगा जब कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा, तब मेरी स्टडी का वो वेरिएबल होगा। अगर उसमें सारी वैल्यू एक जैसी आ रही है देन इट इज नॉट माय वेरिएबल। अगर मान लीजिए आप अमेजोन के इससे कस्टमर से आप उनका सेटिस्फेक्शन देखते हो कि अमेजोन कंपनी जो है उसके कस्टमर्स कितने सेटिस्फाई हैं, तो इन दैट केस अमेजोन इज नॉट वेरिएबल, राइट। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि ऑनलाइन जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं उसमें लोग कितने, या ऑनलाइन शॉपिंग से लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, तो वहां पर आप 2 या 3 भी ले सकते हो कंपनीज। जैसे कंपेयर करने के लिए फ्लिपकार्ट ले ली, अमेजोन ले ली, अलीबाबा ले ली फॉर एग्जाम्पल, राइट, या कोई और ले ली, तो यहां पर वेरिएबल हो गया। तो इट कैन लिमिट टू 3 और 2, बट इट शुड बी मोर देन 1, तभी वो वेरिएबल होगा। वो आपकी स्टडी का वेरिएबल हो जाएगा कि वेबसाइट कौन सी थी जिससे आप सेटिस्फाइड हो, तो वहां पर वो वेरिएबल बनेगा। बट अदरवाइज अगर आप सिर्फ अमेजोन के सारे कस्टमर ले रहे हैं तो वेबसाइट कैन नॉट बी योर वेरिएबल। तो यहां पर देखो आपकी वेरिएबल हुई वेबसाइट और आपके एट्रीब्यूट हुए कौन कौन सी कंपनीज। अब उसमें भी आप अलग अलग कर सकते हो, फर्नीचर कंपनी को अलग कर दिए, बच्चों के सामान के अलग कर दी, बुक्स के लिए अलग कर दी, होम फर्निशिंग की अलग कर दी, कुछ भी कर सकते हो, वो टोटली आपकी विश है, बट हम उसको नाम ये देते हैं। देन एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वालिटी or characteristics or feature of an object or person required in a research study, as I have given you examples. Variables कई तरीके के होते हैं। पहला है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन मैंने लिखा है नंबर्स ऑफ आवर्स स्टडीड डिपेंड्स ऑन लीड्स टू मार्क्स, मतलब हायर मार्क्स कर दीजिए या मार्क्स कर दीजिए, जितने घंटे पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ये एक फिनोमिना है और मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। अगेन हम अपने पुराने लेक्चर पर जाएं, हमने ये लिटरेचर से फाइंड आउट किया कि लोगों ने फाइंड आउट किया कि जितने आवर्स ज्यादा स्टडी कर रहे हैं उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल मार्क्स आर डिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज, ठीक है। सो मार्क्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ आवर्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा तो नहीं होता मार्क्स ज्यादा है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमने कितना वो कर रहा है, ऐसे नहीं होता ना कि किसके मार्क्स आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली लाते हैं कि इसने स्टडीज ज्यादा की होगी तभी इसके मार्क्स आए होंगे। जो पढ़ेगा नहीं उसके मार्क्स कंपैरेटिवली कम होंगे ही होंगे, दो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप। एक और वेरिएबल होता है विच इज कॉल्ड मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट तो करता है, दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट, दैट मींस व्हिच रिलेशनशिप, नंबर ऑफ आवर्स या हायर नंबर ऑफ आवर्स लीड्स टू हायर मार्क्स, बट इट मे वेरी फॉर जेंडर। मे बी लड़कों के लिए ये ठीक ना हो, लड़कियों के लिए ज्यादा हो, मतलब लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ती है तब उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता वो कम या ज्यादा पढ़े, उनके मार्क्स इससे इंपैक्ट नहीं होते। दिस कुड बी अ पैरामीटर। आप कोई और पैरामीटर ले सकते हैं, हो सकता है इंटरेस्ट जिसका ज्यादा हो सब्जेक्ट में, या जिसकी उस इंटरेस्ट में व्हाट यू विल से परफॉर्मेंस पहले से ही अच्छी हो, या किसी को प्री नॉलेज हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, राइट, वो आ सकता है। कुछ भी यहाँ पर मॉडरेटिंग वेरिएबल हो सकता है, पर अपनी मर्जी का अगेन नहीं हो सकता। दैट अगेन वी ब्रिंग इट फ्रॉम द लिटरेचर कि लोगों ने कहा है कि क्या इन दो ग्रुप पे फर्क पड़ता है। हो सकता है शहर वाले बच्चे के ज्यादा नंबर आते हो, गांव वाले को कोई फर्क ना पड़ता हो, आई मीन बैकग्राउंड का फर्क पड़ता हो, एजुकेशन बैकग्राउंड का फर्क पड़ता हो, इनकम का कोई रिलेशनशिप हो, बट जरूरी नहीं है कि हर चीज का फर्क पड़ेगा, ये चेक करना पड़ता है। तो जेंडर ज्यादातर जेंडर हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है, राइट, क्योंकि जेंडर के केस में हम मेल और फीमेल्स स्टडीज ने प्रूव किया है, वी थिंक डिफरेंट वे, वी आर डिफरेंट पर्सनालिटीज कलेक्टिवली, राइट, ऑल टुगेदर। अगर हम इन जनरल बात करें तो इसका इंपैक्ट हो सकता है। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या है? मीडिएटिंग वेरिएबल होता है कि एक बीच में कोई और रिलेशनशिप भी है जो मे बी वी आर टेकिंग इट और नॉट टेकिंग इट। हाँ, एक चीज और, मॉडरेटिंग वेरिएबल को हम इंटरेक्शन वेरिएबल भी बोल देते हैं।
राइट। मीडिएटिंग वेरिएबल्स का दूसरा नाम है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। नाउ हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ आवर स्टडीज है और मार्क्स लीड करते हैं, पर एक बीच में हो सकता है कि नंबर ऑफ आवर स्टडी करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट बढ़ती है और इसलिए हमारे मार्क्स आते हैं। यहाँ पर दो चीजें बहुत समझने वाली हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ये कह रहे हैं कि मोर अंडरस्टैंडिंग का मीडिएटिंग रोल है, बट उससे पहले वी नीड टू प्रूव दैट कि जो दो ओरिजिनल वेरिएबल थे दैट मीन्स नंबर ऑफ आवर स्टडीज एंड मार्क्स, उनके बीच में पहले तो रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग दैट देयर इज अ मीडिएटिंग वेरिएबल कॉल्ड मोर अंडरस्टैंडिंग। नो। तो इसका मतलब जब हम लेट्स से तीन वेरिएबल है x y और z, z is the mediating variable, x and y are the original variables where x is the independent, that means number of our studies, marks is y. If I'm saying that z has a mediating role between the relationship of x and y, that means there should be relationship first of all between x and y. इसको और लाइटर तरीके से बताती हूँ। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, कोई गर्लफ्रेंड आ जाती है बीच में, थर्ड पर्सन आ जाता है बीच में, राइट? तो वो तभी आकर रिलेशनशिप को इंपैक्ट करेगी जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप होगा। अगर कोई इंसान अनमैरिड है तो उसका वाइफ से रिलेशनशिप क्या खराब होगा? या अगर दो फ्रेंड्स हैं, तीसरा फ्रेंड आ जाता है कभी कभी, तो दो फ्रेंड्स की दोस्ती या तो उस तीसरे बंदे के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या हल्की होती है, या कभी कभी ये एग्जाम्पल भी हो सकते हैं कि पता लगे दोनों तीसरे के फ्रेंड बन गए पर आपस में दोनों की दोस्ती खत्म हुई है। तो इसकी भी डिग्रीज होती हैं जिसको बोलते हैं नो मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन और फुल मीडिएशन। ये आप लोगों के इतने सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट मीडिएशंस भी लेवल पे होती है। हल्की मीडिएशन हो सकती है, फुल मीडिएशन हो सकती है और नो मीडिएशन एट ऑल हो सकती है, लेकिन वो टेस्ट करने पे पता चलता है। तो ये होता है आपका मीडिएशन। मतलब पहले हम कहते हैं नंबर ऑफ आवर्स स्टडी मार्क्स, लेकिन मीडिएशन क्या हुआ कि नंबर ऑफ आवर्स का मार्क्स से रिलेशनशिप तो है, पर वो इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स स्टडी करने से मोर अंडरस्टैंडिंग होती है और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी तो मार्क्स अपने आप ज्यादा आ जाएंगे। इसके अलावा एक लास्ट कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल। ना अभी एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल क्या है? अब वी नो दैट नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज का मार्क्स पे फर्क पड़ता है। क्या सिर्फ इसका ही पड़ता है? नो, देयर कुड बी मेनी व्हाट यू विल से वेरिएबल्स जो मार्क्स को इंपैक्ट करते हैं, राइट? लेकिन मे बी दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है? और हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स का मार्क्स पे फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो हमें एज ए रिसर्चर ये भी देखना पड़ता है कि ऐसे कोई वेरिएबल्स तो नहीं है जिनका इम्पैक्ट है और हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन है, लोग अचानक से ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो अगर हम ये एक चीज लगा दें और किसी को अगर ये ना पता हो कि डिमोनेटाइजेशन हुआ और मैं एक डेटा दे दूं किसी को 10 नवंबर 2018 को शायद हुई थी डिमोनेटाइजेशन या 17 को हुई थी, जो भी 18 को शायद हुई थी, जो भी डेट थी, मे बी मैं एक दिसंबर का डेटा दे दूं और लोगों का और करेक्शन कर दूं अक्टूबर के डेटा और दिसंबर के डेटा का, और मैं कह दूं कि भाई लोग शिफ्ट हो गए हैं ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ, तो क्या वो एक ट्रू पिक्चर होगी लोगों की शिफ्टिंग बिहेवियर की? नहीं, क्योंकि वहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो एक एक्सट्रानियस वेरिएबल वहां पर आया, वो ये कि हमने ये भूल गए कि उस वक्त पर डिमोनेटाइजेशन आया था तो लोगों के पास मनी थी ही नहीं अवेलेबल, सो दे वो चाहते या ना चाहते फोर्सफुली और विलिंगली दे शिफ्टेड टू डिजिटल पेमेंट। असली अगर कंपेयर करना है तो मे बी आज की डेटा से हम कंपेयर करें जब लोगों की बिहेवियर सेट हो गया और ऐसी कोई मनी क्रंच नहीं है, कैश आपको जितना मिल रहा है उतना अवेलेबल हो रहा है, तो आज की डेट में अगर कुछ इंपैक्ट ऐसा नजर आता है डेफिनेटली वी कैन से दैट पीपल हैव शिफ्टेड टू ऑनलाइन डिजिटल बिहेवियर। बट आज के केसेस में कोरोना का एक एक इंपॉर्टेंट केस है, वो क्या है कि लोग फिजिकल मनी नहीं लेना चाह रहे एक दूसरे को क्योंकि उससे टच होता है, इनडायरेक्ट टच होता है, सो मे बी दैट कुड बी द रीजन। और ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं लोग, ज्यादा जा ही नहीं रहे बाहर, तो दैट कुड बी अ रीजन। सो यू वी नीड टू सी कि ऐसा तो नहीं है कि जो फिनोमिना हम स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली में वो उसकी वजह से नहीं हो रहा, वो कुछ और ही हो रहा है और मैं अपने मन से एक रिलेशनशिप बना रही हूँ, राइट? हो सकता है नंबर ऑफ आवर्स का कोई फर्क ही ना पड़ता हो, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो इंटरेस्ट का ज्यादा फर्क पड़ता है कि जिसका ज्यादा इंटरेस्ट है
वो अपने आप ही बैठता है, उसके अपने आप ही नंबर आते हैं। जिसका इंटरेस्ट नहीं है, मे बी वो घंटों बैठा रहे किताब लेकर, बट दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग मार्क्स. सो दैट एज अ रिसर्चर वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स विच कुड अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ऐसा ना हो कि हम सुपरफिशियस कोई रिलेशनशिप बता दें कि इसका इस पर फर्क पड़ता है, और हम मेन एक्टर ही भूल जाएं कि एक्चुअली तो ये इसकी वजह से हो रहा है. जैसे इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट या कंसंट्रेशन, ये दो एक चीजें हो सकती हैं कि आप किताब लेकर तो बैठे हैं पर आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है, तो फिर आपके मार्क्स कहाँ से आएंगे? और आप कहेंगे आपने तो स्टडी में बताया था कि ज्यादा घंटे पढ़ो तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, मैंने तो अपने बच्चे को इतनी देर बिठा के रखा, उसके तो मार्क्स ही नहीं आए. बट यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें और भी है कि कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट, so that we cannot ignore in this particular relationship. So these are different types of variable. एक डिस्टिंक्शन हम ध्यान से देख लेते हैं कि वेरिएबल और कंसेप्ट इसमें एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करें, ये डेटा सेट में डिफरेंट होता है. जैसे आपको बताया मेल फीमेल, तो डेटा सेट में किसी की वैल्यू कोई आएगी, किसी की वैल्यू कोई आएगी. सारे डेटा सेट की एक वैल्यू अगर आ रही है किसी भी एक चीज से, जैसे मैंने आपको अमेजोन का एग्जांपल दिया या गर्ल्स कॉलेज का एग्जांपल दिया, इन दैट केस इट जेंडर और वेबसाइट कैन नॉट बी अ वेरिएबल. एट्रीब्यूट में हम स्पेशल क्वालिटी, जैसे जेंडर के बेसिस पर हम मेल और फीमेल को अलग कर रहे हैं, फीचर्स के बेसिस पर हम कर सकते हैं. जैसे अगर हम चाहे तो लेस इंटेलिजेंट और मोर इंटेलिजेंट, या हायर आईक्यू वाले और लोअर आईक्यू वाले, या कोई और फीचर ले सकते हैं. जैसे हाइट के बेसिस पर हमने ज्यादा हाइट वाले बच्चे अलग कर दिए और कम हाइट वाले कर दिए, कुछ भी हो सकता है वो. और करेक्टरिस्टिक शेयर बाय मल्टीपल डेटा, कुछ भी आप अपने डेटा की करेक्टरिस्टिक्स देखें और उसके बेसिस पर हम अलग अलग कर सकते हैं. जैसे इनकम के बेसिस पे कर लिया, ज्योग्राफिकल रीजन के बेसिस पे कर लिया, कुछ भी हो सकता है वो डेटा. देन मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है? पर्पस, कि हम मेजरमेंट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और इसमें है कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे. पहले हम अपने डेटा के एट्रीब्यूट चेक करते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारा डेटा इस तरीके का है कि वो अलग अलग एट्रीब्यूट दिखा रहा है, तो हम उसको वेरिएबल बना देते हैं. उसके बाद एक कंटिन्यूअस स्केल होते हैं इसमें, जैसे लेंथ, टाइम एटसेट्रा. एट्रीब्यूट में ज्यादातर डिस्क्रीट होता है कि जिसको हम गिन सकें कि मेल फीमेल अलग अलग कर सकते हैं, कंटिन्यूटी नहीं होती है. उसके बाद वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू ले सकता है. जैसे जेंडर की 3 वैल्यू हो सकती है, मेल फीमेल हो सकती है और अदर हो गई. लेकिन एट्रीब्यूट किसी में एक टाइम पे एक ही हो सकता है. सेम इंसान एक टाइम पे 2 कैटेगरी में नहीं आ सकता है, राइट. वेरिएबल में हमारा मेजरमेंट होता है कि डेटा को हमें मेजर करना है. एट्रीब्यूट में हमें देखना है कि कितने एट्रीब्यूट वाले लोग हैं, मतलब कितने मेल है हमारे पास और कितने फीमेल हैं. इसका एक एग्जांपल है मैरिटल स्टेटस. एक ही वेरिएबल होगा, या तो कोई मैरिड, मतलब मैरिड है या अनमैरिड. अगर आप डिवोर्सी को या विडो को हम मैरिड मान लें कि एटलीस्ट वंस ही गॉट मैरिड और शी गॉट मैरिड, तो एक वेरिएबल आया. एट्रीब्यूट क्या होगा? या तो कोई मैरिड है या अनमैरिड है. 2 एट्रीब्यूट्स हम ढूंढ रहे हैं अपने उसमें, या तो कोई मैरिड है या अनमैरिड है. पर जब हम स्टेटस लिखेंगे तो उसको कोई एक ही मार्क करेंगे, या मैरिड या अनमैरिड. ऐसे नहीं लिख सकते कि वो दोनों हैं, राइट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट, राइट. So